आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब सरकार व भारत सरकार से मान्यता प्राप्त A1 हाईटेक फ्रूट नर्सरी, जो कि मलोट रोड सीतो गुन्नो में स्थित है। यहाँ पर सभी फलदार पौधे किन्नू, माल्टा नींबू, अमरूद इजरायली तकनीक द्वारा विशेषज्ञों की देखरेख में पॉली बैग में तैयार किए जाते हैं। दूर दूर से किसान भी यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ से फलदार पौधे खरीदते हैं। हमारी टीम ने यहाँ के ऑनर से बातचीत की, जिन्होंने A1 हाईटेक फ्रूट नर्सरी के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए नज़र डालते हैं इसकी झलकियों पर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ A1 ਹਾਈਟੈਕ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਤੋਗੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ A1 ਹਾਈਟੈਕ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸਰ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਟਰਸ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿਪ ਬਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਈ ਤਕਨੀਕ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀ ਬੈਗ 'ਚ ਜੋ ਸਿਟਰਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੱਟੀ ਖੱਟੀ, ਆ ਜੋ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀ ਬੈਗ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਪ ਬਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੂ ਮਾਲਟਾ ਇਹ ਨया ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜੱਟੀ ਖੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਿਪ ਬਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿਪ ਬਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰ ਐਰੋ ਡ੍ਰਿਪਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲੱਡੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 90% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਪਲਾਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਪਲਾਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैंती ਤੇ पूरे परफेक्ट कारीगर है। थैंक यू सर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं A1 नर्सरी, जो कि एक ऐसी नर्सरी है जो यूनिक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक नए कंसेप्ट के साथ उन एजुकेशनिस्ट ने, उन लोगों ने जो इजराइल से अपनी नई नई टेक्निक्स लेकर आए हैं, उन लोगों ने ये प्रोड्यूस की है। सर, आप लोगों का सभी का स्वागत है, तीनों का हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर, आज का सिनेरियो जिसमें एक किसान है जो वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है और हम देख रहे हैं कि आप लोग सिक्योरिटी वाला जो काम किसान के लिए यहाँ पर जिस तरह से आप अपना नर्सरी चला रहे हैं और किसानों को एक बढ़िया बीज जिस तरह से दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अमर सिंह पूनिया है। मैं 10 महीने पहले एज ए प्रोजेक्ट अफसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मांगियाना से रिटायर हुआ हूँ। हम लोग 2008 के अंदर हरियाणा सरकार और भारत सरकार के थ्रू इजराइल गए थे। 20 मेंबर्स का एक डेलीगेट इजराइल में हम लोग गए थे। वहाँ हमने 20 दिन के अंदर पूरी ट्रेनिंग ली, वहाँ पे उनकी फील्ड विजिट की। तो 20 दिन बाद जब हम वापस आए तो एक दिन पहले हमारे डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अर्जुन सिंह जी सैनी ने उनको एक प्रेजेंटेशन दी, भाई हम लोग आपसे क्या चीज़ ऐसी ये चीज़ें लेके जाते हैं जो हमारे फार्मर के फील्ड तक पहुंच पाए, और इसी मकसद से हम गए थे। वापस आने के बाद हमने 2 प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किए, जिसमें एक प्रोजेक्ट था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स सिट्रस का, जो मांगियाना है डबवाली के पास, और दूसरा हमारा सेंटर जो प्रोजेक्ट था वो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल गरौंडा करनाल के अंदर दिल्ली रोड पे बना हुआ है।
ये दोनों प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे सबमिट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और दोनों एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद हमने 2009 के अंदर मांगेड़ा के अंदर इजरायली तकनीक से इजरायली विशेषज्ञों के साथ ये काम शुरू किया और 2010 के अंदर वो पूरा का पूरा जो पहले हमारा सेंटर था, फार्म था 72 एकड़ का फार्म था, वो पुराने सिस्टम पे चल रहा था। लेकिन इजराइल से वापस आने के बाद ट्रेनिंग लेकर जब हम वापस आए तो उसको 1 साल के लिमिट टाइम के अंदर हमने उसको इजराइल बेस पे पूरा का पूरा हमने फार्म वो तैयार कर दिया था। आज वहाँ पे इजराइल की वैरायटी है, संतरे की है, ओलिव की है, बहुत सारी वैरायटियाँ वहाँ पे इजरायली तकनीक से जो हम लगा सकते थे वो हमने लगाई है। और उसी तरीके से मेन जो इजराइल की तकनीक थी वो 3 कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया था। एक तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन, एक प्लांटेशन ऑन रिज और 100% इरिगेशन बाय ड्रिप। ये 3 कॉन्सेप्ट हम लेके चले थे, उसमें हम 100% कामयाब हुए हैं। आज हमारा मांगेड़ा का सेंटर इंडिया के अंदर नंबर 1 सेंटर है। टाइम टू टाइम वहाँ पे इजरायली विशेषज्ञ भी आते रहते हैं, तो हमारे विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनके साथ उनकी मीटिंग भी होती रहती है। मैं भी 6 महीने पहले वहाँ से रिटायर हो गया। इसके बाद वहाँ पे जो फार्म के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ हमारे फार्म के ऊपर इजराइल के संतरे की, माल्टे की किस्में लगी हुई है, हमारा इंडियन किन्नू है, माल्टा जो इंडियन है उसकी 3 किस्में लगी हुई है, अनार की 5 किस्में लगी हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पे हाईटेक नर्सरी भी है जो 3 स्टार रैंकिंग है। इसके साथ साथ हम एक वहाँ पे हाईटेक ग्रीन हाउस के अंदर सॉइललेस मीडिया के अंदर बिना मिट्टी के वहाँ पे मांगेड़ा फार्म पर सब्जियों की पौध भी तैयार करते हैं और वो किसानों को रेट टू रेट, नो लॉस नो प्रॉफिट के अंदर मुहैया कराते हैं। जब वहाँ से मैं फ्री हुआ तो मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी नर्सरी बनाए जहाँ से किसानों को अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिले, क्योंकि किसान जब बाग लगाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि उसको अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल नहीं बढ़ता और इस तरह की नर्सरी पूरे एरिया के अंदर नहीं थी। मन के अंदर एक इच्छा थी कि क्यों ना हम एक फार्मर की सेवा के लिए एक अच्छी नर्सरी डेवलप करें जिसमें उनको प्लांटिंग मटेरियल, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिले। क्योंकि किसान ये जो फसल होती है, अगर कोई बीज आपका अच्छा नहीं आता तो वो 6 महीने बाद चेंज किया जा सकता है, लेकिन जब बाग लगाने की बात हो, एक बार किसान बाग लगा लेता है, प्लांट अच्छे नहीं मिलते तो 5 साल बाद उसको पता लगता है भी ये प्लांट अच्छे नहीं है, अगर वो उखाड़ता है तो वो किसान 5-10 साल पीछे गया। तो इसी चीज़ को मकसद लेके हम पूरी नेट हाउस के अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ये इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा के, आप जो अब देख रहे हो पूरी की पूरी बेड बना के, इनके नीचे भी हमने ये बजरी डाली है ताकि फंगस ना आए। फिर हम सॉइल लेस मिट्टी, सॉइल में जो मीडिया यूज़ करते हैं वो साल्ट फ्री सॉइल थैलियों में भरते हैं। पॉली बैग में हम प्लांट तैयार करते हैं, बड भी हम पॉली बैग में ही करते हैं। और जो हमारा बड का तरीका है वो जैसे मांगेड़ा फार्म के अंदर हम इजरायली तरीके से चिप बडिंग करते हैं, वो ही चिप बडिंग हम यहाँ अपनी नर्सरी के अंदर, और दूसरी हमारी जो नर्सरी कुलार के अंदर है जो यहाँ से 5 किलोमीटर है उसके अंदर भी हम चिप बडिंग ही करते हैं। तो पॉली बैग के अंदर तैयार करने से किसानों को ये फ़ायदा होता है भाई, उसमें जो मोर्टेलिटी है, जो प्लांट के मरने की आशंका है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। एक सिंगल प्लांट भी हमारा मरता नहीं है। इसके बाद जब यहाँ से किसान पौधे लेके जाता है तो उसको जब हम 1 घंटा पहले उनको ट्रेनिंग भी देते हैं भाई कैसे आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर लगाना है, कैसे कटाई करनी है, कैसे खाद डालनी है, इसके बाद कटाई कैसे करनी है। तो ये चीज़ें भी हम फार्मर फील्ड पे जाके बताते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग 24 घंटे किसानों का एकमात्र मकसद हमारा यही है भाई किसान खुशहाल हो और उनको अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट है वो मिल सके। और पिछले 2 साल से हम हिमाचल गवर्नमेंट को भी हम स्वीट ऑरेंज जो माल्टा है हमारा यहाँ का, वो उनके 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक HP शिवा प्रोजेक्ट है, हिमाचल गवर्नमेंट अभी 2 साल से चला रही है, जिसमें उनके कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, धर्मशाला ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको भी हमने प्लांट दिए। पीछे 6 महीने पहले हम लोग उनके किसानों के जहाँ हमारे से प्लांट लेके बाग जो किसानों ने लगाए हैं उनके खेतों में गए, फील्ड पे गए, उनको कटिंग की जानकारी दी भी कैसे आपने कटिंग करनी है, कैसे खाद डालनी है, कब डालनी है, ये सारा बताया। तो अब उनके किसानों के जो फल पौधे हैं वो फल के ऊपर है और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। सर, आपने अपनी सेकंड पारी भी शुरू कर ली और अपने बेटे जो कि MSc करके एक नई जो टेक्निक्स, क्योंकि आज का जो यंग ब्लडेड है वो बहुत क्रिएटिव है और उन्होंने भी इस आपको फॉलो किया और आपके साथ जैसे आपने उनको गाइड किया, वो गाइडेंस और उनका अपना माइंड जैसे वो नई नई चीज़ें निकालते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और एक भाई साहब जो इतनी ज़्यादा लेबोरियस पर्सन है जिन्होंने सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों की जो टीम है यहाँ की,
जिसमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेशन है और बहुत बढ़िया तरीके से जो है पेस रल के काम हो रहा है। सर बेटा अमित है, वो एमएससी एग्रीकल्चर है। वो कुछ दिन तो जॉब के पीछे लगा रहा, लेकिन मैंने उनको समझाया भी जॉब के अंदर कुछ नहीं है, आप छोड़ दो। हमने जॉब करके भी देखी है, लेकिन आप अपना काम करो। एक तो सेटिस्फेक्शन होगी। एक क्या है कि 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी करने से अगर आपको 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर मिलती है तो उससे उसका घर खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो इसको ध्यान में रखकर हमने इसको इस काम में डाइवर्ट किया भी आप नर्सरी बनाओ, आपको अच्छी इनकम होगी, साथ में हम कम से कम 30 से 40 लोगों को रोज़गार खुद आप दोगे। जिसमें हमारा शिव है जो हमारा पार्टनर भी है, ये सारा टेक्निकल काम बडिंग कराना, लिफाफे सॉइल मीडिया भरना, उनको रफ लेमन के पौधे जो जट्टी खट्टी के हम पौधे यूज़ करते हैं लगाना, ये हमारी एक टीम वर्क है। तो इनको हम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, हर चीज़ का नॉलेज है। सेल का मैं देखता हूँ, ये प्लांट्स का टेक्निकल काम है, कब इनको इजरायली तरीके से कब बड करना है, कब वो पॉलीथीन सीट हटानी है, कब पानी देना है, कब खाद देनी है, स्प्रे, वो मैं बताता हूँ। उसी के अनुसार ये सारे काम करते हैं और इनका अब सर्विस को भी मन नहीं करता। ये बहुत खुश है कि हमने एक ऐसा अच्छा काम किया भी जिससे खुद को तो रोज़गार मिला ही मिला, अच्छी इनकम भी है और साथ में हमारे को सेटिस्फेक्शन ये है भी हम कम से कम दोनों नर्सरियों के ऊपर 30 से 40 लोगों को रोज़गार भी दें। तो मैं तो युवाओं को भी सबसे ये कहना चाहता हूँ भी वो खुद का काम करें। अब ये सामने आपके प्रैक्टिकल है, हम पिछले 3 साल से, अब ये कहता, अमित भी यही बात कहता है कि मैं नौकरी अगर चला जाता तो ये काम नहीं कर पाता, सारी उम्र उसी में लगे रहना था। लेकिन अब इनको थोड़ा काम में इंटरेस्ट भी आने लग गया, क्योंकि जब अर्निंग आपकी शुरू हो जाती है तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है और एक लगन भी होती है भी इस काम को और आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। अमित जी, क्या कहना चाहोगे कि एक तो आप अपने बाप की आंखों के तारे बनकर बैठे हैं और अब हमारा यूथ जो पंजाब का है वो बाहर जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन अपने इंडिया को दी, अपने पंजाब को दी और वो क्वालिफिकेशन देकर आज आपने इतने ज़्यादा, क्योंकि जब एक बूटा फलता है तो उसका सारे का सारा क्रेडिट है इन भाइयों को जो आपने यहाँ सवाई जो नर्सरी बनाता है, जो पौधा उगाता है उसको जाता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, जो बच्चे की तरह हम पौधों को पालते हैं शुरू दिन से, मतलब सीड ग्रोइंग से लेके नेक्स्ट स्टेज पे उसको, जैसे वो खट्टी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में हम इसके ऊपर रफ लेमन में, तो उसके बाद में इसके ऊपर बड करते हैं। तो जब तक एक साथ हमें 2 साल लगते हैं एक पौधे को तैयार करने में, पर जब ये प्लांट्स हम फार्मर्स को देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है भी हाँ, हमने कुछ अच्छा काम करके एक अच्छे हेल्दी पौधे फार्मर्स को दे रहे हैं। और आप बाप की आंखों का तारा बनकर, और उनको भी मज़ा आता है, पोते साथ में खेल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अरे इंडिया ना छोड़कर जाओ भाई, काम करो, वहाँ जाकर आप प्लानिंग करते हो, 3 बजे उठते हो, सुबह ये करते हो वो करते हो, हम लोग प्लान बन गए, अगर इंडिया में ही प्लान कर लो तो अरे मज़े ले सकते हो, क्या कहना चाहोगे? ये तो बात आपकी सही है। अगर आपके पास खुद के व्यूज़ है या खुद की नई टेक्निक है तो आप अपना काम खुद से करिए कोई, जिसके अंदर अगर आप बाहर की जॉब के अंदर इतना कुछ नहीं रखा या जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं यूथ है, तो आपके जो यहाँ घर पे आपके पेरेंट्स है वो अकेले रह जाएंगे, आप वहाँ रह जाओगे जी, तो दूरियाँ आपस में दूर बढ़ेगी जी। सर, क्या कहना चाहोगे कि जो भी यंग ब्लडेड इस चैनल के माध्यम से, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली कहीं भी देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, अगर वो लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपसे इस चीज़ की टेक्निक सीखना चाहें, तो क्या वो उनको भी आप लोग अटैच कर सकते हैं साथ? जी, मैं सबके लिए मोस्ट वेलकम है, कोई भी आके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कभी भी किसी ने मिलना हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे, और किसी ने भी कुछ भी पूछना हो कैसे क्या करना है, अगर हमारी फील्ड के लिए रिलेटेड आप पूछोगे तो हम ज़रूर बताएंगे। और अगर किसी ने पनीरी लेनी हो, जैसे ये लोग कोई फार्म हाउस बनाना चाहे पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, तो आपसे टेक्निक पूरी ले सकते हैं? जी जी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अमित को और इनको मैंने ये काम सिखाया तो अब हमारा सिर्फ सिस्टम ये रहता है कि घर से हम सुबह सारे लोग नाश्ता करके आते हैं, टिफ़िन साथ ले आते हैं, सारा दिन काम करते हैं, शाम को अपने घर में परिवार के साथ रहते हैं। तो मैं हर युवा से, यंग से ये कहना चाहता हूँ कि वो बाहर के जाने के पीछे या इस तरह ना भागे, अपना काम स्टार्ट करें। बहुत काम ऐसी है भी, आप जितना मर्जी के कोई भी काम कर लो, खूब पैसा है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो और साथ में इनकम भी हो। तो हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हिंदुस्तान का कोई भी किसान, इवन जो NRI है, उनके भी हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं
कि सर हमारे बहुत सारे फ़ोन ऐसे भी आते हैं, हमारे बाग में ये दिक्कत आ गई, हमारे सब्जियों में ये दिक्कत आ गई, हम क्या करें, कैसे करें। उनको हम फ़ोन पे भी एडवाइस करते हैं। कोई भी किसान हमारे से पौधे लेके आना चाहता है तो हम एडवांस में पहले पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ बुक कर लेते हैं बिना पैसे के, जबकि सरकारी नर्सरियों में आपको पूरा पैसा दे के प्लांट बुक कराने पड़ते हैं। क्योंकि किसान के पास कई बार पैसा नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो उस हालात को समझते हुए हमने ये फैसला लिया भाई हम बुकिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। प्लांट नोट कर लेंगे भी आपको कितने चाहिए, कब चाहिए। वो हम सीजन में, जैसे ही सीजन आता है जुलाई अगस्त के अंदर हम देना स्टार्ट करते हैं। जब दिन का टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री हो जाता है और 2-3 बरसात हो जाती है, लगाने का टाइम हो जाता है, तो जब हमारे पास लेने आता है किसान तो हम पूरी 1 घंटा उनको ट्रेनिंग देते हैं भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जिस टाइम हम ट्राली में किसानों के प्लांट लोड करते हैं उस टाइम भी इनकी पूरी कटाई छटाई करके, कोई छोटा प्लांट है, कोई डिजीज़ से कोई डिजीज़ वाला प्लांट है, वो बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। किसान को कोई भी डिजीज़ वाला, कोई छोटा प्लांट, कोई टेढ़ा प्लांट हम नहीं देते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है भी अच्छे प्लांट लेके जाएं तो आने वाले 2-3 साल बाद उसकी अच्छी इनकम स्टार्ट। और जिनके अच्छे ऑर्चर्ड है, पिछले 2-3, ये एक किन्नू का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एरिया है, तो जिनके पुराने बाग है वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ किन्नू से कमा रहे हैं। जिनके पास हम ये 2-3 चीज़ें होती है भी आपके पास पानी कैसा है, आपके पास मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से हम किसानों को डिज़ाइन कराते हैं। भाई ये नहीं है भी आपने किन्नू ही लगाना है, तो उसके हिसाब से हम उनको ये एडवाइस करते हैं भी आपके पास इस तरह की अगर मिट्टी है, इस तरह का पानी है, तो आपके खेत में कौन सा बाग ठीक रहेगा, वो हम एडवाइस भी देते हैं और उनको टाइम टू टाइम हम बताते भी रहते हैं। सर, आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे देखने वाले दर्शकों को एक नई सीख दी, बच्चों को सीख दी कि वो अपने माता पिता के साथ रहें। और कमर्शियल एंगल से आपने जैसे बात करी है कि जो इंसान इस फील्ड में आएगा वो कब अगर मेहनत करता है, जैसे आपने बताया कि सुबह से शाम तक हम लोग यहाँ लेबर करते हैं, आते हैं, सेवा करते हैं पौधों की और उनको एक नया रूप देते हैं। आपका हमें समय देने के लिए सभी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें शाम का समय, फिर भी आप लोग घर से आए, द्वारा से आए, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।